hello and welcome back everyone to the Perpetuals 2 podcast where the conversations don't end. I am your host Yash, and along with me I have my favorite co-hosts Ritesh and Ritik. And tonight on the panel we have Priyanka again, and to add more to the glamour we have Apurva as well. So rejection is a very sensitive topic, but the thing is that we will try to keep it थोड़ा ऐसा sensitive way में, but if we take a light-hearted method also with the discussion, so don't think कि ऐसा we are making fun of the subject. It is a very touchy subject for everyone around us, and with the amount of incidents we are seeing these days with these rejection and guys handling it not good at all. See, like recently I was watching, like just one Google search, just if you type girl rejects a guy, and उसके बाद जो news आता है where the girl ends up dying or getting stabbed, getting killed, getting acid attacked, and बहुत सारा चीज होता है उससे related. So काफी sensitive topic है, and this is a subject जिसपे की discussion is necessary so that we can create some awareness around it. And we have people on the panel who get rejected quite frequently. We have two actors with us. Yes. We have a UPSC aspirant. भारती, तुम कहाँ रिजेक्ट होता है भाई? जॉब इंटरव्यूज में। भाई मेरा मैनेजर रिजेक्ट करता है। भारती के कोवर्कर्स उसको इज्जत नहीं देते हैं, तो मतलब बाकी लोग ड्रिंक ब्रेक पे जाते हैं, भारती को इग्नोर करते थे, तो ही फील्स रिजेक्टेड एट दैट टाइम आल्सो। तो देख, लाइक रिजेक्शन का सिंपल एक मीनिंग केवल यही नहीं है कि लड़की ने लड़के को मना कर दिया या द अदर वे अराउंड। रिजेक्शन कैन हैपन एनीवेयर, लाइक जॉब हो सकता है, अटेंशन आपको नहीं प्रॉपरली मिलता है तो यू फील रिजेक्टेड। अपने फैमिली मेंबर से अगर वो वैलिडेशन की कमी है तो यू फील रिजेक्टेड एट टाइम्स, है ना। प्यार में तो होता ही है, कोवर्कर्स का साथ नहीं आपको लेके जाना, यू फील रिजेक्टेड दैट टाइम। तो मतलब ये एक बहुत ज्यादा ही बड़ा अम्ब्रेला है रिजेक्शन का, जिसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं। So let's begin. यश, कुछ अपनी कहानी से बताओ यार, when did rejection actually hit you? Like ऐसे proper? नहीं, इतना recently नहीं describe, recently मत describe करो, recent चीज के बारे में मत पूछो, कुछ पुराना। Recent नहीं यार, I have been rejected my whole life. So this is not a topic that I am shy, that I would shy away from. Have you seen this face? कौन नहीं rejected? I like Yash. Bro, I love it. Yeah. So the thing is ना कि rejections hit you very hard. Like it makes you question वो तुम्हारा सारा insecurities where you don't want to go to. But the thing is कि like why was I rejected? Like even a breakup is rejection but delayed. Like you are getting rejected by the girl, लेकिन थोड़ा सा delay है उसमें. Like if you think about it, and rejection take you to your lowest. Whether you like start thinking about what was the reason, status, money, your looks, your personality, and everything. It makes you question everything, and it takes you to a very dark place. You get depressed. You get very insecure about those little things that you are already insecure about, और तुम्हारे insecurities को वो उतना ज़्यादा magnify कर देता है. Just a rejection. Whether you are an actor, so like being an actor, maybe if you guys get rejected, you would think like, am I not that good? Like, am I not good enough for this role? Totally, I can relate to it. देखो, reject बहुत बार life में इंसान होता है ना, और मतलब multifarious जगहों पर होता है। जैसे आपके अगर मतलब दूसरों की बात छोड़ दो, आपके फैमिली में ही इफ जिस तरह के बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, राइट, तो आपके फैमिली में एक हमेशा वो वाइट कलर सुप्रीमेसी रहा है कि जो मतलब गोरा बच्चा होता है घर का,
है ना, उसको ज्यादा क्यूट माना जाता है, उसको ज्यादा वैलिडेशन मिलता है, राइट? तो Do that, bro. Cheers to that. That's so तो sweet. Sorry. तो हमेशा ये चीज रहा है कि जैसे फैमिली में कोई कजन है जो आपसे ज्यादा अच्छा लुक्स के साथ है ना, और लोग आपको बहुत मतलब ऐसे बहुत क्या बोलोगे उसको, बहुत सटल तरीके से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है? यू फील रिजेक्टेड एट दैट टाइम अपने घर पे ही। और ये उस टाइम पे होता है जब आप अपने लाइक 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे होते हो, और अचानक से आपको कोई ऐसे बोल देता है कि अरे दोनों भाई में देख रहे हो कितना जमीन आसमान का अंतर है। कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, जस्ट वो मेरा मेरा ऐसा कलर टोन, मेरा स्किन टोन कम है, दैट्स इट। जमीन आसमान का अंतर नहीं है, और अगर है भी तो फिर देयर इज अ होल वर्ल्ड अराउंड इट, कि मेरा पर्सनालिटी शायद मेरे भाई से ज्यादा अच्छा है तो है जमीन आसमान का अंतर। तो आप उस पॉइंट पे आपको एक रिजेक्शन फील होता है, एंड वो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। क्योंकि अब फॉर एट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक बच्चे के मन में अगर ये चीज बैठ गया कि उसकी फैमिली उसके लुक्स को कंफर्म नहीं करती है, उसका नया नया क्रश डेवलप हुआ था अभी क्लास में, एक लड़की को देख के वो पसंद कर रहा था, है ना, और अब उसको पता है कि घर वाले ही कंफर्म नहीं कर रहे मेरे लुक्स को, मैं बाहर दुनिया को कैसे फेस करूंगा? तो रिजेक्शन कैन यू नो अक्यूमुलेट इन योर माइंड दैट मच कि आप फिर कभी अपने लुक्स के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो। एंड टिल नाउ, मतलब मेरे को तो अभी भी अपने लुक्स को लेके बहुत कंफर्मिटी नहीं है कि हाँ ठीक हस है, भाई आई नो आई हैव us bro. तो वही है कि रिजेक्शन बहुत ट्रिवियल सा हो सकता है, बट उसका इम्पैक्ट एकदम रिपल इफेक्ट के जैसा होता है। इट स्टेज विथ यू फॉर लाइफ। Oh, I would like to add something to Ritesh. That I mean, rejection when it starts with your family, it's the basic root of you growing up. So if it starts from that age, it ends up getting like a lifetime insecurity. You know. और जनरली ऐसा क्या होता है ना कि जब आप रिजेक्ट होते हो ना, तो फिर आप बहुत फाइट करते हो दूसरे के वैलिडेशन को पाने के लिए, है ना, मतलब आप अपने आप को हर तरह से, हर संभव तरीके से आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो कि मैं कैसे भी करके उस मोल्ड में फिट हो जाऊं जिस मोल्ड को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। लाइक हमको अभी भी याद है कि फेयर एंड लवली कौन लड़का नहीं लगाया था, बैक देन देयर वाज नो फेयर एंड हैंडसम। तो आप फेयर एंड लवली की ट्यूब लेके सुबह स्कूल जाने से पहले यूज टू कि ज्यादा लगा लेंगे तो मे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए, है ना। और आज की डेट में अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि भाई तेरे को गोरा होने के लिए कोई एक पिल दे देता हूँ और तू खा ले और गोरा हो जा, आई डोंट रियली वांट, कि मेरा मेरा नीड्स बदल गया है। तो जिस छोटी सी चीज के लिए मैं पहले रिजेक्ट होके इतना हार्ड मतलब मेरा जो दिल टूटा था, वो आज की डेट में मेरे लिए सबसे ट्रिवियल चीज है। मतलब अभी तो हम आज सुबह से मुंह नहीं धोए हैं, ऑनेस्टली हम सुबह से आज मुंह नहीं धो के बैठे। तो माशाल्लाह, क्या दिख रहे हैं आप? I wake up like this, bro. I wake up like this. मेरा मतलब वही था टू सम अप एवरीथिंग दैट उस टाइम दिमाग में आ रहा था कि मतलब जो कल के डेट में आपको लगता है ना कि इसके बिना नहीं हो सकता है, या ये मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वैलिडेशन लेने के लिए बी इट योर क्रश और बी इट योर लव, कि जिस समय आप रिलेशनशिप में होते हो और आपको लगता है कि यही है, इसके बिना आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, और वो सेकंड पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है, आपका लाइफ बदलता नहीं है, एक्चुअली नहीं बदलता है। मतलब मैंने कहीं एक शायरी पढ़ी थी कि देखो ना कितनी झूठी है ये प्यार की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो मैं भी जिंदा हूँ। तो हम लोग तो यही बोल के गए थे ना कि तुम्हारा कसम। मर जाएंगे, कि मर जाएंगे तुम्हारे बिना। वो मोहब्बत मुझसे सीख कर गया, वो हम्म। मोहब्बत मुझसे सीख कर गया है, अब जिससे करेगा कमाल की करेगा। वाह. एंड इट लाइक हिट्स यू, वो जितना भी चीज है ना, सारा तुम्हारा इनसिक्योरिटीज, हाँ कि हाँ मेरा रंग काला है, आई एम फैट, आई एम शॉर्ट, एंड ऑल माय लाइफ आई हैव बीन नथिंग बट अ फेलियर। तो और ये सारी चीज जितनी भी इनसिक्योरिटीज है ना, इट गॉट हिट लाइक व्हेन आई गॉट लाइक ऐसा ब्रेकअप हुआ, तो मैंने तो प्रोसेस ही नहीं किया था उसको 1 साल तक। तो नहीं मेरा सकते, ब्रेकअप, वो तो नहीं उसके कर मन में सकते। ब्रेकअप हुआ था ना, तेरे मन में तो नहीं होप नहीं, था भाई। हाँ एग्जैक्टली exactly. एग्जैक्टली। And even if you're in a very good relationship, I would just like to add, even if you're in a very good relationship, you are at a very good place. But कभी लगता है कि वो भी होता तो even if you're जिंदगी in में a हर happy चीज place, हर किसी को नहीं मिल सकता है ना।
मतलब देखो, आपके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है चीजों को रखने की। अगर ए से जेड तक आप दुनिया में चीजें हैं, ठीक है, तो आपके कंपार्टमेंट में फिट होने लायक केवल 15 चीजें हैं, और दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज के डेट में अगर आपके पास ए बी सी डिप्राइव्ड है ना, तो आपको ए बी सी बहुत क्रेव करेगा कि अरे यार एबीसी मिल जाए, एबीसी मिल जाए। कल के डेट में एबीसी का नेसेसिटी चला जाएगा। योर बॉडी विल नाउ वांट एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को देख के आप क्रेव करोगे। और यू कांट हैव एबीसी एंड एक्स वाई जेड एट द सेम टाइम, क्योंकि स्लॉट है ही नहीं। आपको एक तो चाहिए भी नहीं एक भाई, लिमिटेड एक तो चाहिए पर्सनालिटी भी के नहीं। साथ ही रह सकते हो। Yeah, should like X to चाहिए. But what a thought. अब तो LMNOP की बारी है। पर हाँ वही है कि मतलब रिजेक्शन का कुछ मतलब पॉजिटिव साइड भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे लिए हो सकता है कि द टाइम व्हेन वी गेट रिजेक्टेड हो सकता है दैट फील्स वेरी नेगेटिव कि हाँ भाई ऐसे कैसे हो गया, मतलब हाउ कैन आई, ये चीज कैसे पॉसिबल नहीं हुआ मेरे साथ। पर हाँ अगर उसको पॉजिटिव वे में देखेगा तो ऑब्वियसली इट हैज वेरी मतलब गुड पॉजिटिव साइड्स की एक बार अगर आप रिजेक्ट होते हो सेम चीज के लिए, तो फिर जैसे रितेश बोल रहा था कि अब मतलब था बचपन में कि हाँ फेयर एंड लवली लगा के जाएंगे गोरा दिखेंगे, तो लगा के गया ना एक चीज, मतलब उस टाइम उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सोचा कि मेरे को कैसे खुद को इम्प्रूव करना है, राइट, कि हाँ उस चीज को कैसे हटा। अब जैसे मेरे साथ है, अगर कहीं भी कुछ भी, अब नॉर्मल एक एग्जांपल लेके चले कि साला कॉलेज का ही जीडीपीआई है या कुछ भी है, तो साला उस इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया, कैसे बोल दिया भैंस की आंख, मतलब ये क्या हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट में वो रहता है कि हाँ इस चीज को एटलीस्ट ठीक करके जाना है, तो दैट इज समथिंग व्हिच गिव्स यू अ ग्रेट थिंग कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव भी है कहीं ना कहीं कि रिजेक्ट नहीं होगे तो सीखोगे कब, गिरोगे तभी तो उठोगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप छोटी चीजों से, मतलब लाइफ इतनी बड़ी है आपकी कि आप अगर अभी अभी आप 25-26 साल के हुए हो, और मतलब आपकी लाइफ अभी आगे 70 तक तो एटलीस्ट सबको जिंदा रहना है। जितना एडवांसमेंट हो रहा है मेडिकल फैसिलिटीज में, हमको तो पूरा पक्का मेरे को तो यकीन है कि नहीं 90-90 तक से पहले कोई नहीं मर रहा है, ठीक है। लोग इतना 60 पे अंधा चलता पैसा फूक है ना हॉस्पिटल में 60 में जान निकालो बचाने भाई के हमको लिए। यहाँ से, 60 पे निकालो हमको यहाँ से। लाइफ इतना बड़ा है ना कि आप अभी आज के डेट में जितना ट्रिवियल ट्रिवियल चीज से रिजेक्ट हो रहे हो, मतलब क्योंकि आपका वो नीड है ना। मतलब एक जाकिर खान का ही अभी आज जिक्र हुआ था, तो जाकिर खान का ही एक कहीं सुने थे या था कि अगर आपको आज शर्ट चाहिए, नई शर्ट चाहिए, तो ना दुनिया इतनी कुत्ती है, इतनी हरामजादी है कि आपको तो वो आज शर्ट मिलेगा नहीं। आप लाख मेहनत कर लो, आज वो शर्ट नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जरूरत आज की है, ठीक है। और कल हो सकता है कि आपको शर्ट का नहीं, आपको 3 पीस सूट का जरूरत हो, और आपको 3 पीस सूट मिल जाएगा। कल कल के डेट में आपके लिए 3 पीस सूट इंतजार कर रहा है। बट आज अगर आपको शर्ट चाहिए ना, तो इतना, मतलब दुनिया इतनी हरामजादी है कि आपको नहीं मिलेगा आज शर्ट। तो मेरा रिजेक्शन का ऐसा रहा है कि नाउ आई हैव क्रैक्ड इट आफ्टर कमिंग टू मुंबई। आई हैव क्रैक्ड रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो वो ऐसे है कि जैसे यहाँ पे एक्टर्स लाइक बोलते हैं ना कि बहुत इतने हजार लोग रोज मुंबई आते हैं, कोई स्टार बन जाता है, कोई वापस चला जाता है, एंड देयर सो मच कंपटीशन लाइक। तो पहले यहाँ पे जहाँ पे सारा ऑडिशंस होता है वहां पे पहले सब लोग फेस पे रिजेक्ट करता था, ठीक है। अभी तो फिर भी पैंडेमिक के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कम से कम व्हाट्सएप पे रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले तो यहाँ ऐसे सब लोग एक्टर्स खड़े रहते थे, क्योंकि जब व्हाट्सएप और ये सब नहीं था, तो ऐसे फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट मुंह पे बोला जाता था भाई। तो उस चीज से बहुत डरे हुए थे हम लोग। जब हम लोग सब एक्टिंग स्कूल से निकल के मुंबई आए तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि ये रिजेक्शन कैसे फेस करेंगे। बट यहाँ पे रह के पता नहीं, सम थॉट केम, सम सीनियर्स का कुछ वर्ड्स, सब कुछ ऐसे मिक्स होके बस एक जो थ्योरी आया सामने। उसके बाद दैट हैज लाइक, फॉर दैट आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 3 years वेरी हैप्पीली, नॉट वरीड अबाउट रिजेक्शन with just that one theory कि the person rejecting you, it's not that you have to take it to yourself कि ये मेरे में कुछ कमी है इसीलिए हम रिजेक्ट हो रहे हैं। Actually that is not the requirement that he is looking for. He is looking for something else जो हम, वो अपना स्टेंसिल लेके घूम रहा है जिसको उसमें फिट होना है, और हम उसमें फिट नहीं होते हैं, बट दैट इज ओके, हम कहीं और फिट होते हैं, somewhere more beautiful. So Right. Ritesh, when you were saying about
कि वही सब जो चीज, it's their stencil, your stencil has to be, and it is very different, सबका अपना individual stencil है, it has to be very different with each other and we need not fit. तो उस दिन से not fit तो मेरे लिए not fit नहीं था, उसका scale में हम fit नहीं होते हैं, but somewhere beautiful. तो वैसे फिर I think Apurva will agree with Bro, me. I'm looking at you adorably, like I'm like, she gets it. You know, this is Apurva will agree that this is what keeps us sane in Mumbai, and I'm so glad that this happened, that now every rejection ends up, you know, being just Yeah. okay. I'm good with it. Yeah, I agree with you, It's not and me. that is the reason कि मैं आज तक fit नहीं हो पाया हूँ. In any sense. रिजेक्शन को फिर फेस कैसे करना है? ठीक है, रिजेक्शन तो सबके लाइफ में हो रहा है ना कहीं यू एवरी डे यू फील रिजेक्टेड समहाउ, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ रिजेक्शन आता है ना? कि अब ठीक है, मान लो कि 4 दोस्त दारू पीने जा रहे हैं, तेरे को इनवाइट नहीं किया, यू फील रिजेक्टेड एट दैट टाइम भी कि अरे यार पार्टी करने जा रहा था, हमको बोला नहीं. मे बी यू हैव सम अदर प्लान, बट अगर एटलीस्ट पूछना तो चाहिए था उसको. तो वहां पे भी रिजेक्शन हिट करता है कि मतलब लाइक पूछा नहीं. हर केस में रिजेक्शन उतना मतलब प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है डील करना, बट कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में बहुत मुश्किल होता है रिजेक्शंस को डील करना. तो कोई बता पाएगा कि रिजेक्शन को डील एक्चुअली कैसे करते हैं? एक तो प्रियंका ने शेयर किया ही था. यश, यू हैव समथिंग टू से ऑन दिस? फॉर मी सबके लिए ना रीजंस अलग हैं कि उसको कैसे आप डील कर सकते हो. For me, I have find my answer in religion. Apurva has something to say on that, I guess. Yeah. So your question was that how to cope up with this? Like if you are, you'd actually like हमारे लिए बोलना बहुत easy होगा कि यार cope up कर लो, तुम कर सकते हो, ये तरीका है, वो तरीका है, you know. अरे ठीक हो जाएगा भाई. You know, honestly, you are the one who is going to take the control of the situation at that point. Yeah. And if you can't control how much ever bullshit you read, how much ever affirmations you write, fucking meditate for hours and hours, you are still gonna be insecure in life. You're gonna still have the fear inside you, living with you 24/7. Sometimes you just have got to accept the fact. Just to like accept that situation in that moment, that rejection moment, and see how much can you walk through it, walk without it, walk with it. If you find these 3 aspects of a rejection in your life, I think one can easily cope up with their own insecurity. और इसी के साथ एक रामायण का एक व्याख्या है, अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ, अगर आपकी आगे आओ तो. जी महाराज. ठीक है, तो जिस वक्त भगवान श्री राम को वनवास दिया जाता है, उस वक्त व्हाट ही सेज इज दैट कि जो माता कैकेयी हैं वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मेरी अपनी माँ मुझसे करती हैं, एंड आई डोंट नो द रीजन कि मुझे किस लिए वनवास भेजा जा रहा है. है ना? सो व्हाट भगवान राम सेज इज दैट कि मे बी ये दैवत है. सो द वर्ड दैवत हियर मींस किस्मत है, जिसके वजह से आई हैव टू गो टू इनटू द एग्जाइल. And he just accepts the fact because he doesn't have a reason behind it. So sometimes your rejections doesn't need a reason. You don't need a reason to be rejected. And sometimes you just have to cope with it. कि हाँ, ऐसा भगवान के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है? And to cope up with it, you can take his example. क्योंकि अगर राम नाम से पत्थर नहीं डूबता है तो मेरा साहस कैसे डूबेगा? Okay. Just keep your hand ऐसा कि नहीं, यही है वो स्थान जहाँ बसते मेरे राम, और ऐसा बढ़ते चलो लाइफ में. एकदम ऐसा सिंपल है. पर्सनल है, ये भी बहुत पर्सनल है कि किसके लिए क्या है. Yes. मेरे को एक तरीका मेरे को ये भी लगता है ना कि लोगों को ना find your own way of you have to find your own way to cope up with things. Yeah, yes, that's exactly. what Apurva said, like just adding and highlighting that either you have to cope with it, you have to walk through it, you have to just drop it there or whatever. Into it, तो उससे बाहर नहीं आ सकते. लाइक कुएं से बाहर आने के लिए तुमको एफर्ट मारना पड़ेगा.
अगर पर कोई जब रस्सी तुम भी कुएं से डाल देंगे, बाहर if you are निकल not भी ready रहे to हो, catch it, also जब तुम तो कुएं से तुमको कोई बाहर बाहर निकल नहीं रहे हो तो निकाल हमारे सकता। लाइफ में like as you mentioned family and all, you know, कुएं के मेढक कुएं में रहते हैं, you know, the one मेढक wants to come out of it, but there are 10,000 of them pulling you back into the same, you know, because rejection के बाद जो एक आपका hurt होता है, एक आपकी एक space होती है, you can't really share that with everyone. So if you share it with a wrong person also, that can pull you back through your depression way more, you know, your rejection way more into then, two. you know, that's something you said very right. I just wanted to add something there. मेरे को एक रीजन ये भी समझ में आता है ना कि लोगों को एटलीस्ट इन इंडिया लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना कभी सिखाया ही नहीं गया है ना। स्कूल में कभी ट्रेनिंग नहीं मिली, मतलब हमें तो पाइथागोरस थ्योरम सिखाया गया है, लेकिन स्कूल में कभी इमोशंस एक्सप्रेस कैसे की जाती है वो कभी नहीं सिखाया गया, जो इसका मेरे को लगता है रूट कॉज होना चाहिए मेरे हिसाब से। कि जैसे इफ यू लव समवन और इफ यू लाइक समवन, आपको स्कूल में कभी नहीं बताया गया कि हाउ टू यू नो, ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि आप Express. गलत काम तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, मतलब आप मारने काटने की कुछ गलत काम करने की आप बात नहीं करने चाह रहे थे किसी इंसान से, बट जस्ट कि आपको अपने क्रश को कैसे वो बात बतानी है, अपने अंदर के इतने सच्चे इमोशंस को, इतने प्यारे इमोशंस को कैसे दूसरे तक कन्वे करना है, ये कभी आपको सिखाया ही नहीं जाता है। तो सिमिलर चीज होता है रिजेक्शन के बाद भी, सिमिलर एक आपके अंदर में इमोशन आता है कि गुस्सा होगा वो शायद, या फिर हर्ट होगा, और इस चीज को इस इमोशन को भी कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये कोई नहीं सिखाता है। कि रिजेक्शन मिला और इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने नहीं आता है, इसीलिए कोई सरफिरा आशिक जाके किसी के चेहरे पे एसिड फेंक आता है, या किसी का रेप हो जाता है इंडिया में, कि just उसको because कि he validate doesn't करना भी know उतना how ही to important express है कि his if anger someone is or his sad, sadness. अगर Sorry? कोई बुरा फील कर रहा है, कोई रो रहा है, तो उसको बार बार चीयर अप करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई रो रहा है तो उसको जाके तुरंत चुप करा दें। Exactly. तो इफ समवन इज क्राइंग, लेट देम क्राई। उसको रोकना क्यों है उस चीज से कि नहीं तुम रो नहीं सकते हो, तुम डिप्रेस नहीं फील कर सकते हो, तुमको हमेशा खुश रहना, यू हैव टू स्टे एलिवेटेड। तो तुम मशीन नहीं और हो ना, अपने यू आर अ इमोशंस को, ह्यूमन, यू आर मेड अप ऑफ इमोशंस। तो उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। राइट, Yeah, और I mean, I हमारे wanted to इमोशंस add. को, सॉरी, Sorry, go ahead. हमारे इमोशंस को, मतलब जब हमको लगता है कि जब आपको अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सिखाया जाएगा, कि आप, मतलब एक इमोशन है ना, एंगर एक इमोशन है, बट एंगर को चैनलाइज करना अगर सिखाया जाता तो कभी कोई एसिड अटैक विक्टिम नहीं होता हमारे देश में, है ना। कि जस्ट बिकॉज कि उस बंदे को पता नहीं था कि अपने एंगर को कैसे शांत करना है, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करना है एंगर का, तो वो सिर्फ उसको कभी नहीं सिखाया गया। ये हमेशा से सोसाइटी भी कहीं, एक तो मैं ये कभी से सपोर्ट नहीं करता कि उसने जो किया वो सही किया, उसने तो गलत किया ही किया, बट उसके गलती में सिर्फ उसकी गलती नहीं है, सोसाइटी की भी गलती है, क्योंकि आप बचपन से आपने एक डिफरेंस रखा है ना, मेल फीमेल का एक डिफरेंस सिखा के रखा, आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत सुपीरियर लेवल पे है, आपको कैसे भी पाना है, यू आर चेजिंग समवन, तो वो चेज करने में आप हार जाते हो, और हारने के बाद आपको पता नहीं रहता है कि एक्चुअली इस चीज को मतलब कैसे एक्सप्रेस किया जाए, तो आप जाके कुछ how उल्टी can they सीधी deal हरकतें with this rejection? वो Yeah, सिखा ना किसी को कि if you are being rejected by someone, accept the fact that you have been rejected. yes, उसके पीछे तुम रो, उसके पीछे तुम गुस्सा अगर आ रहा है उसको चैनलाइज करो इन अ डिफरेंट वे। इफ यू टेक एन एक्शन जो कि काफी गलत है, सो यू आर नॉट जस्ट रूइनिंग टू लाइव्स, जो भी लोग उनसे कनेक्टेड हैं सबका लाइफ पे उससे इफेक्ट पड़ता है। And the whole idea also. Yeah, and the whole idea also. Now, I'm a great advocate for all these feminists and जो female icon निकल के आ रहे हैं, और even we have come a long way, जो 50 साल 100 साल पहले जहाँ पे हमारी सोसाइटी थी उससे हम लोग काफी आगे आ गए। बट राइट नाउ व्हाट आई फील इज कि ओवरऑल ग्लोबली हमारे सोसाइटी में द अमाउंट ऑफ मेल रोल मॉडल्स have gone significantly down because people don't have those male role models to follow. And like great कि हाँ इतने लोग निकल करके आ रहे हैं, but somewhere for men to aspire to become like someone, वैसे लोगों की जो तादाद है उसको कम हो गई है। So like when you aspire to become like someone, you start inheriting their habits.
तो वहां पे ओवरऑल सोसाइटी में जो है ना, यू सी कि लोग तुमको ऐसा दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग मेल रोल मॉडल, तो वहां पे तुमको पीपल लाइक एंड्रू टेट एंड दोज पीपल राइज टू द पावर, बिकॉज क्योंकि कोई है नहीं, वो जो वैक्यूम ऊपर क्रिएट हुआ है ना, वहां पे कोई भी अगर ऐसा नल्ला बेरोजगार जा करके बैठ जा रहा है ना, पीपल विल फ्लॉक टू देम। बचपन से ही आपके लाइफ में आपके रोल मॉडल सेट हो जाते हैं। इफ यू रियली नोटिस, आई मीन, बिकॉज आई हैव worked with LGBTQ community, I've worked with marginalized gender, and I've got to know about their story, their father's story. One generation carries the same abuse towards the woman in the second generation, then it passes on to the third, and slowly, I mean, it'll change. Like as you said that there are 15 slots of evil will change with next 15. You know, every emotions has their own 15 slots of it. So that's how it is. And I think if people are literate in this world, in this country, it will change a lot of things. It'll change a lot of things for any sort of anger, any sort of voice that you want to give to this world, what you want to say out loud. It will all change. It will start from that one point, you know, but that one point needs to be very good, very positive. If it is not that, at least be okay. Conclusion ये है कि आपका rejection आपके life का आपका अपना space है, and if you really know your space, if you really know what you really want in your life, you can push through anything in your life. Nothing worth anything which can cost you your life, your ambitions, your dream, your passion. Nothing worth that. Even if it is a girl, even if it is a boy, only your mom and dad, and only your fucking dreams. So cheers to dreams and get out of it. You can do it. And you should also like go ahead and start distinguishing your rejections. कि मतलब अगर कल कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है, कुत्ता मुंह घुमा के चला गया, तो भाई I feel rejected, ये नहीं होना चाहिए. You should start distinguishing your rejection कि हाँ कि ठीक है, मतलब कुछ एक ऐसा होना चाहिए जिसको तुम रिजेक्शन लेके चल सको, और चल नहीं सको उससे कोप अप कर सको. और मतलब अगर देखा जाए तो रिजेक्शन इज नथिंग, जस्ट अ स्लाइट रीडायरेक्शन वाला चीज होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, रीडायरेक्ट होके वापस लेट्स गो. क्योंकि वो रिजेक्शन लेके बैठोगे तो फिर कुछ होने वाला तो है नहीं. मेरे को बस इसमें थोड़ा सा मेरे तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क यही रहेगा कि मेरे को लगता है कि रिजेक्ट होने के बाद यू डोंट रियली हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू देयर वैलिडेशन. if there is something to change within yourself, वो तुम्हारे पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए होना चाहिए था, दूसरे के वो मोल्ड में फिट करने के लिए नहीं अपने आप को बदलना चाहिए कि अरे मेरे को पानी पीने की वजह से छोड़ के गई है तो मैं पानी नहीं पीना छोड़ दूंगा. राइट एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है वो, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम. राइट. बेटरमेंट मतलब चेंज तो बहुत जरूरी है, इंसान को हमेशा अपने अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने चाहिए, बट वो चेंज किसी और के पैरामीटर्स पे ना हो और आपके पैरामीटर्स पे हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बेटरमेंट, यस और को देख लो. The thing is, if you have been rejected, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, रिजेक्शन ऐसा चलते रहेगा और एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. यू डोंट हैव कोई उसके अलावा कोई चांस नहीं है. कोई बंदी छोड़ के गई तो वो तुम्हारा पेट नहीं पाल रही थी, बाप पाल रहा था, चलते रहो. फाइंड समथिंग टू कोप अप विद, ऐसा फिर बढ़ो. कोई चीज तुमको नहीं रोक सकता है. यू आर द ओनली वन ऐसा. और अपना जो भी फीलिंग है, एग्जैक्टली आपको कोई चीज नहीं रोक सकता. वो एक्चुअल अच्छा है. इफ यू आर फीलिंग बैड, दिस इज गुड. You are actually human. You were supposed to feel these things. There's a reason I feel ki why I is written in uppercase in the English language, right? Because I is always important. You are important for yourself. ना तुम्हारे किसी और के तुम्हारे लाइफ में रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तुमको आज के डेट में लगता है कि हाँ फलाना इंसान मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, योर लव तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है. यार इंसान के माँ बाप मर जाते हैं, इंसान जीना नहीं छोड़ता है ना. नो वन इन द पैनल मस्ट टेक इट वेरी पर्सनली. जस्ट सेइंग कि इंसान को उसका सबसे डियरेस्ट वन छोड़ के चला जाता है और इंसान फिर भी जिंदा रहता है, खुश रहता है, वो अपना लाइफ जीना नहीं छोड़ता है ना. इंग्लिश लैंग्वेज में आई इसीलिए कैपिटल लिखा जाता है हमेशा,
तुम मदर स्मॉल से लिख सकता है, तुम फादर स्मॉल लेटर्स में लिख सकता है, तुम आई जब भी लिखेगा तो कैपिटल में लिखेगा, बिकॉज आई तुमको रिप्रेजेंट करता है। तुम हो तो दुनिया है, तुम हो तो रिश्ते हैं, तुम नहीं रहोगे, तुम अपने आप को खो दोगे तो कुछ नहीं रहेगा। इट्स यू दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो अपने आप अपना वैल्यू जितना ज्यादा आप बना के रखोगे, अपने आप को जितना वैल्यू करोगे, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। नहीं, we wanted to hoot on that. Woo! Right said, Bakshi. Right said. Rightly said. Well said. Thank you. Yes, and with that, I'm going to use that. I'm going to take a copyright of Yeah. this. This is going in my. NFT अवेलेबल है, खरीद लो यार, पैसे आएंगे, उसकी NFT बना के भेज दूंगा। चलो so Yes. इसी के साथ let's conclude this podcast. You have been rejected. You will be rejected. चलते You रहेगा। ought to be Tension मत लो। rejected. तुम सबके The only thing पैमाने you पे can फिट do- नहीं हो गए। हाँ, the only thing you can do is कि यहाँ पे like करो और comment करो, subscribe करो और इसको share करो। हम तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं इस video को करेंगे। reject मत करो। तुम्हारे हाथ में क्या है? इस video को तुम्हारे reject मत हाथ करो। में वो शक्ति है कि तुम एंटर का बटन हो, लाइक तक जा सकते हो। तुम Yes. अपने हाथ में जो चीजें हैं वो करो ना भाई, तुम क्यों सोचते हो? महाकाल की कसम। Right. और पॉडकास्ट पे आज हमारे साथ है प्रियंका, एंड द रीजन बिहाइंड इज कि एक तो वी लव हर, वी एब्सोल्युटली अडोर हर व्हेन शी कम्स टू द पॉडकास्ट, and now I Oh, want Apurva guys. to come again and again on the podcast. You were incredible. Here's to more. Cheers. Cheers to that. प्रियंका का शो आ रहा है 3rd Feb को जहानाबाद, ओनली ऑन सोनी लिव, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अगर हम लोग ऐसा कॉपीराइट नहीं आता तो यूट्यूब पे ही चला देते, लेकिन चलाने Yeah. तो We can watch it Live together. stream करवाते हैं Yeah. वो। वॉच द शो, और शो देखने के We बाद watch. तारीफ करने यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाना। दिस कमेंट सेक्शन प्रियंका की सहारा, वर्ड बोल भाई, सराहना। हाँ उससे भर देना, भरो 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 भरो। And with that, we'll see you in the next episode. Yeah. Cheers. चीयर्स तक ठीक है, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या पी क्या रही है। This is just ginger ale. Ginger ale with a slice of lime. ऋतिक को नहीं पता, इतना छोड़ दो। Tonic water में tonic water. एक शादी में तो घुस के पता चला कि भाई मतलब क्या बोला जाए, छोड़ो पॉडकास्ट है, अगर काट दोगे तो बता देंगे, लेकिन छोड़ो। बताओ नहीं बताओ, काटूंगा, काट देना। मत बता। काट देना यार, यस काट तुम देना। बहुत ज्यादा बताओ, बोल दिए एक पॉडकास्ट के हिसाब से भाई, अब तुम अगले में बोल